So you see, first row it was taking as a header. Second one it was like the separator one between the first value and the second value. Then after onwards, it is taking the value for the particular column, right? So Tableau has its own capacity so that it can interpret like how it can read the file, and it can then show you into rows and column for whether it is a CSV file or a text file, and Excel also as well. It can connect easily. Okay. Any doubt on this, please? Okay, so the next thing is we are going to connect a PDF file. Okay, so what I have done is I have a sample PDF. So you can take, if you have any PDF file with you, which has some meaningful data which you want to extract. Okay, so this is a PDF file. What I did is I just searched Academy Hours in Wikipedia. I have saved it as a PDF file. Okay, if you see most of the pages are filled with some text. Okay, but there is like one or two tables are also available. See, this is 18th page. So here we have a table like year, viewers, and the ad price and adjusted price. Okay, so let's see once I connect how it is going to behave. So for PDF, we have a PDF connector as well. So before like this 10 point Tableau version, this thing were not there. This is recently introduced after the Tableau 9 version. So I'm going to click on this PDF. So I'm just going to point to this PDF file, whichever I have saved it. So now you see a pop-up option is coming whether you want to scan the pages like for all pages or you want to single pages. If you want, you know that data is in my 17th or 18th page, you can mention the page number here. And if you want to scan like from a range of pages, that also you can do. So for now, what I'm going to do is all so that I can show you like how it is going to look when it is scanning all the pages. Okay, so you can see like there are like every pages has been mentioned here. Page 1 table 1, page 2 table 2. So it is detecting that in every page was what is the data present here. Okay, so if I'll just drag the page 1, so this much data it is able to extract. Okay, whether it is meaningful or not, that we have to check the file. And we need to check like what is the page we need to extract the data. Okay, as before I showed you like on 18th page we have some data available, right? So what I'm going to do is I'm going to scroll to 18th page. And one more thing, just remember here each page is taken as a table. Okay, so we have many pages, like I think 18 to 19 pages. So here you can see each page is considered as a table. Wherever the data it is finding and it is getting a table, so each page is getting as a table. This is the symbol for the table. Okay, so what I'm going to drag is I'm going to drag the page 18. Okay, so you can see this value, right? Viewer, ad price, adjusted price. Okay, this is how we connect to a PDF. So it's your choice whether you want to particularly connect to that page or you want to scan the whole PDF file or you want to give a range. Is it clear? Yes, sir, clear. Okay, so similarly, one more thing, whenever you're connecting to a database, okay, whenever you are connecting to a database, so like likewise, like here it is showing the tables present, right? Like it is considering one page as a single table. Similarly, if you are when you are connecting to a database, you will see a number of table which is present in the database. Okay, then if I want to join, example, if I want to join between table 1 and table 2, then I can do, and same wise I can do in database also. Okay, so database is nothing but same structure it will be showing. Okay, so all the tables which are present in the database, it will be listed here. Clear? So next thing, yesterday as I have connected to a Excel file,
we'll continue with that Excel file. It has a very meaningful and useful data. So throughout the session, we'll be utilizing that data to demonstrate all the features and features available in Tableau. Okay. So I'm going to connect to the sample superstore CS Excel, which will be present, which will be available to you also whenever you install Tableau. Also, I'm going to share with you also. Okay, here inside my Tableau repository, go to data sources. Okay, so here I am dragging order, and yesterday as I discussed, and one more thing, just I'll just remove it. Okay, so whenever no table has been present, no table is present here, you can't see any extract connection and filter option. Whenever you're dragging a table here, you will be able to see those options. Okay, before that these options won't be available. Fine. So let's analyze first, like what are the options available in this canvas. Okay, so the first thing here, the connection, it is showing that you have connected to sample superstore, and which is a Excel file. Okay, so the next thing is, here the connection is available. After few minutes, we'll discuss what is the kind of connection, what is the difference between live connection and extract connection. Okay. And this is a filter. This filter is called as a data source filter. We'll discuss about this one also. Fine. So next thing is, as I told you yesterday, I'm going to join a table. Okay. So let's take now people table here. So also it is taking a default as an inner join. If you want to check the condition, it's between the region column. Fine. So next thing is, when we are joining two tables or multiple tables, here I have joined only two tables. You can join n number of tables according to your requirement, right? So here we can see the data preview here. Okay, and only 1,000 rows are available. If you want to increase it, you can do that. Okay, so this is not a fixed thing. It, like, if you want to increase, you want to see more value, more number of rows, you can give your number and it will show according to that. Okay, so here two symbols are available. With one is called data preview, like data source preview, whatever the data you have joined or whatever the tables you have dragged here, this will give you the data preview version. Okay, in the data preview version, let's analyze what are the symbols available here. Okay, so here it is the just the data type. Okay, it is detecting the data type. Then the next thing is, this is the row ID, this is the column name, and this is orders written. That means from which table it is coming from. Okay, here I will just explain these three options, but later we will go all these things in the calculation part, because if I don't want to discuss it now, because that's a separate thing. Okay, rename. So you can rename the column field. Back copy value, we can copy it. Okay, you can copy the value, and if you want to paste it in a Word file or Excel file, that you can do. Okay, hide means you can hide the column. Okay, so when I hidden the file, sorry, I hidden the field, so you are not able to see the file, that field. The reason why we hide sometime is, let's see, we have 40 columns here. Okay, 40 columns, but in our report, when we are building some visualization, we are not using all of the columns. Okay, we are not loading all the columns. Okay, so in that case, what will happen, when you are connecting the file, it will read all the files. So that will make your file or visualization little bit slower. Okay, so that will come into data performance issue. Okay, so whenever you don't need such kind of column, you can hide it, the values, the fields. Okay, in case you need to see the field again, you can click on this. Okay, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करते हैं ना, जो हिडन हुआ था जो कॉलम, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ब्लरी रहता है, ग्रेड आउट रहता है, ठीक है। तो इन दिस केस, इफ यू लाइक फिर से लाना है कि अनहाइड करना है, तो यू कैन डू दैट। अंडरस्टूड?
The reason we hide the field is, हम लोग क्यों हाइड करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे 40 कॉलम्स है, ठीक है। जब मैं विजुअलाइजेशन में जाऊंगा, मैं सोचो कि 10 कॉलम ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी का कॉलम यूज ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर बाकी का कॉलम लोड हो रहा है तो वो तो थोड़ा टाइम लेता है, राइट। तो इन केस आपका मतलब डैशबोर्ड का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, कि आपको थोड़ा फास्टर डेटा डैशबोर्ड मतलब लोड होना है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, वो सब जो अननेसेसरी जो अनयूज्ड फील्ड है वो आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर हाइड कर रहे हो वो सब वो सब बैकएंड में, मतलब जहां पे मैं मेरा फाइल जब सेव हुआ था, डॉक्यूमेंट माई रिपोजिटरी में सेव हुआ था, वहां से वो सब कॉलम लोड ही नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे को अनयूज फील्ड है, वो हमको नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay. The next thing is, here is the option manage metadata. If I click on this, let's see what it is going to show. Okay, so once I click on the manage metadata, I can see three columns present here: field name, table, and remote field name. Okay, why the, okay, table, we can understand that which column is coming from which table, because there will be two columns which are coming from people also. That's fine. Why there are two fields which are like showing as field name and remote field name? Okay, so remember, the remote field name is the actual name which is present in my input. So what was my input? My input was an Excel file, sample superstore Excel file. So that is the actual file, and what will be the name present here, that will be always be there. This won't change. Okay. In case, okay, in case I need to change, or in case I'm renaming this column, okay. So in case like customer, I'm just renaming it to CUST. Okay. So I'm just renaming customer ID to cust ID. Okay. You see, remote field name is still same as it is, the original one. But whenever we change any field name, that changed or renamed field name यहाँ पे आ जाएगा. Is it clear? Difference between field name and remote field name. ओके तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि आपका जो इनपुट कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे जो इनपुट जो भी आपका एक्सेल फाइल है या डेटा वाइज जो भी कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कभी कभी डेवलपमेंट के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं, मेरे को रिक्वेस्ट आईडी नहीं चाहिए, उसको कुछ REQ आईडी मेरे को दिखाना है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना भी चाहिए कि उसका ओरिजिनल नाम क्या था, ठीक है। तो आप अगर मैनेज मेटा डेटा पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि व्हाट इज द actual field name. Is So it clear? depend. Yes, sir. So depending upon the feasibility, our feasibility, we change the name of in field हाँ name, हाँ, आपको and रिक्वायरमेंट आएगा, आपको रिक्वायरमेंट आया कि मेरे को कस्टमर आईडी नहीं दिखाना है, कि उसका नाम थोड़ा चेंज करना है, ठीक okay, है। तो कभी कभी आप डेट मतलब कॉलम का नाम ऐसे होगा कि रो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, रो हाइफन आईडी, जो कि आप विजुअलाइजेशन में डालोगे ना, वो हाइफन थोड़ा अजीब दिखेगा या वो अंडरस्कोर थोड़ा अजीब दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे थोड़ा रीनेम करना पड़ता है, राइट। क्लियर? और Can you please lower down your speed? Actually, I joined little bit later, so I'm not able to understand. So if I'll check recording, but from now onwards, please slow down your speed. You are in so much of a speed, I think. Yes. okay, fine, that I will do it. Okay, so is this part clear, like difference between field name and remote field name? Can you please repeat this part one more time so it would be better? Okay, so I'll just open the Excel which I have connected first. Okay, okay, आपको अभी दिख रहा है ये फाइल, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल फील्ड नेम है। तो ओरिजिनल फील्ड नेम मेरे को कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है ना, रिमोट फील्ड नेम,
यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अगर इन जब मैं चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो मैंने कस्टमर कस्ट आईडी कर दिया, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या? No. नो, राइट। तो क्या होता है कि आप, और एक चीज है, जो भी आप टैब्लू में मैनिपुलेशन करते हो ना, जब टैब्लू में कुछ रीनेम करते हो या उसका डेटा टाइप चेंज करते हो, तो ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो टैब्लू क्या करता है, एक काइंड ऑफ उसका कॉपी ले लेता है, ठीक है, इसका एक डेटा का एक कॉपी ले लेता है। तो आपको वरी होना की जरूरत नहीं है कि कुछ चेंजेस कर दिया टैब्लू में तो मेरा यहाँ पे गड़बड़ नहीं तो हो जाएगा, ओरिजिनल फाइल में चेंजेस नहीं हो जाएगा, वो चीज कभी नहीं होगा। डेटा आपका जो इनपुट कनेक्टेड हुआ है ना, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप चेंज कर रहे हो कोई भी फील्ड का नेम, तो आपको वो जो रीनेम वाला मतलब चेंज हुआ होगा कॉलम का नेम ना, वो यहाँ पे दिखाई देगा। इज इट क्लियर नाउ? Yeah, it's clear. ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज, ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस थिंग हियर, the symbol available here. So this is called sorting. For the sorting purpose we have the icon here. Now you see the option, the icon is looking like it is not in a sorted order. The first time if I click, जब मैं पहली बार क्लिक कर रहा हूँ ना, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाता है। जितना भी वैल्यू है 2000 रो जहां भी अभी है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, राइट। ये आपको दिखा रहा है ना वो सिंबल जैसा, असेंडिंग से छोटे से बड़े तक, ठीक है। सो सेकेंड टाइम आप जब क्लिक कर रहे हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। आपको दिखा रहा है यहाँ पे रो आईडी 2000 से शुरू हो रहा है, राइट। थर्ड टाइम इफ आई क्लिक हियर, इट इज लाइक कमिंग इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। ओके, तो एक है पहला सर ओरिजिनल और रैंडम? रैंड मतलब नहीं, ये होता है ना, यहाँ पे एक चीज है कि डेटा सोर्स ऑर्डर लिखा हुआ है। तो डेटा सोर्स ऑर्डर मतलब जैसे पहले आप फाइल को कनेक्ट किए ना, तो जैसा फाइल में है वैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बराबर। मतलब वहां पे जिस यहाँ पे जो है फाइल पे, इनपुट फाइल पे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू सॉर्ट देन यू सॉर्ट इट। ओके, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन है आपके पास कि डेटा सोर्स ऑर्डर, डेटा सोर्स मतलब जब भी आप इनपुट फाइल कनेक्ट करते हो और वो उसके हिसाब से दिखाता है। अगर मैं A to Z में करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर Z to A करोगे फिर उल्टा। ओके, तो ये इसके हिसाब से शॉर्टिंग होता है। सर डेट भी सॉर्ट हो जाएगी? अगर आप डेट के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट करो तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 2060 अगर डिसेंडिंग में डाल रहा हूँ तो 2020 से सिलेक्ट हो रहा है। अगर असेंडिंग से डाल रहा हूँ तो 16 पे सिलेक्ट हो रहा है। शॉर्टिंग विल वर्क, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट थिंग। okay, so next thing is the connection part. Okay, so as you can see when I am dragging a table here, this ये जो कनेक्शन वाला पार्ट होता है ना, वो अपियर होता है। तो यहाँ पे लाइव कनेक्शन है और एक्सट्रैक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव कनेक्शन और एक्सट्रैक्ट कनेक्शन? तो कल जैसे मैंने एक हिंट दिया था कि आपका डेटा, मान लो एक वीक में डेटा चेंज होता है कि हर संडे मेरा डेटा अपडेट होगा, ठीक है, हर महीने मेरा डेटा अपडेट होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको लाइव कनेक्शन रखने का जरूरत नहीं है। तो लाइव कनेक्शन कहाँ पे रखते हैं? जहाँ पे आपका डेटा ना बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, जैसे पर मिनट डेटा आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी सेल्स का वैल्यू, जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लो, वहां पे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेटा चेंज होता है, राइट। तो उनको रियल टाइम देखना है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे पहले का डेटा दे रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, राइट। तो लाइव कनेक्शन में क्यों रखते हैं कि जहाँ पे डेटा बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट और सम सेल इज गोइंग ऑन, ओके, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल नाउ इट इज। तो कोई सेल चल रहा है, ठीक है, तो आपको कैसे दिखा है कि दीज मेनी क्वांटिटीज आर लेफ्ट, ओके। आपके पास 50 क्वांटिटी था जिसमें आप सेल्स शुरू किए, लेकिन जब पीपल मतलब लोग ऑर्डर करना चालू किए तो आपका ऑर्डर घटेगा ना फिर। तो उस टाइम पे अगर लाइव कनेक्शन में है तो आपको क्या होता है, वो रियल टाइम डेटा दिखने को मिलता है कि वो जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, राइट। देन एक्सट्रैक्ट में क्या होता है? एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में अगर क्लिक करता हूँ तो एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में ये जो जितना भी आप डेटा देख रहे हो, ठीक है, ऑर्डर और पीपल में डेटा जितना भी है, टैबलू क्या करता है, एक उसका स्नैपशॉट सेव करता है, ठीक है। स्नैपशॉट मतलब
ये जितना भी डेटा है ना उसका एक वो कॉपी रखता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि अगर Hello. मैं Open, sir. हाँ हाँ ओके I am Swadhin. 1 second, sir. Live, sir, please. okay, so live connection is example your cricket match is going on, okay, so there are 6 balls are there, so every ball someone is hitting and the run is getting updated, okay. So now the third ball is going, okay, it's like it is a 6, so you say for third ball the run is 6, okay. When the fourth ball is coming, okay, someone is taking 1 or 2 runs, single or 2 run they are taking, so you need to see the updated data, right? You need to see what is the score for that fourth ball, right? In that case, if your data connection is live, you will be getting a updated data. In case like example of the sale or stock market में value तो मतलब fraction of second में change होता है stock value, right? तो उस टाइम पे हमारा जो डैशबोर्ड है ना वो लाइव में रहना चाहिए, तो इट विल बी हेल्पफुल कि आपको रियल टाइम का वो जो अपडेटेड डेटा है ना वो दिखाई देगा, राइट। और एक्सट्रैक्ट कनेक्शन किस में जाता है कि आपका डेटा मान लो कि हर वीकली अपडेट होता है, तो वीकली अपडेट अगर होता है तो मेरे को एक्सट्रैक्ट में रखने में फायदा है, क्योंकि डैशबोर्ड का परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। लाइव में क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वो डेटा सोर्स से फेच करता है, ठीक है, डेटा सोर्स से फेच करके आपको टैब्लू में दिखाता है, तो वो मतलब क्या है, कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, कनेक्शन वो बना हुआ है, तो उसको डेटा फेच करने से दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लाइव कनेक्शन विल बी लिटिल बिट स्लो। बट इन एक्सट्रैक्ट कनेक्शन क्या हुआ कि देखो मान लो कि आज कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो मेरे पास सितंबर तक डेटा पड़ा हुआ है, मेरा नेक्स्ट डेटा कब आएगा, अक्टूबर एंड में, अक्टूबर एंड में जब डेटा आएगा, मेरा जो बीच का 30 दिन है, सितंबर का मैंने आज सोच लो कि 3-4 दिन पहले अपडेट कर दिया था, सितंबर का डेटा आ गया, ठीक है, तो बीच में मेरा तो डेटा आना ही नहीं है, जो 30 दिन या 31 दिन बचा होगा उसमें मेरा तो डेटा आना ही नहीं है, राइट। तो मैं अगर लाइव कनेक्शन रखूंगा, कोई यूजर जाके कुछ देखना चाहेगा तो वो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, तो इन दैट केस यू चेंज टू एक्सट्रैक्ट कनेक्शन ऑलवेज, ओके। तो उसमें क्या होगा, तो आप भी एक चीज बोल सकते हो कि हाँ ठीक है सितंबर का डेटा तो ले लिया, अभी अक्टूबर का डेटा आएगा तो कैसे अपडेट कैसे होगा, ठीक है। तो अपडेट कैसे होता है, हम एक रिफ्रेश शेड्यूल देते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका डेटा जो है ना मंथ का एंड में मॉर्निंग 12 को और आफ्टरनून 12 को अपडेट हो जाता है, तो आफ्टरनून 12 को अगर अपडेट होता है, मैं 12 मतलब 12:30 का एक रिफ्रेश शेड्यूल दे दूंगा, वो कहाँ पे दूंगा, मैं सर्वर में दूंगा, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जस्ट रिमेम्बर इफ यू आर कनेक्टिंग एन एक्सट्रैक्ट कनेक्शन, हम लोग एक रिफ्रेश शेड्यूल देते हैं, ठीक है। तो सितंबर का डेटा 12:30 को अपडेट हो गया था, अक्टूबर को 12:30 में अपडेट होगा, 31 तारीख को या 30 तारीख को, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अक्टूबर खत्म हो गया तो अक्टूबर का डेटा आके सितंबर में ऐड हो जाएगा, तो आपको जब उसके बाद डेटा अपडेट होने के बाद डैशबोर्ड खोलोगे ना तो आपको सितंबर भी दिखेगा, अक्टूबर भी दिखेगा। इज इट क्लियर? Here my question is like as you told us like rightly back only that कि अगर हम कोई डेटा चेंज कर रहे हैं अपने हमारा डेटा एक्सेल में चेंज नहीं होगा, और अगर कुछ हमें रीनेम करना है या कुछ भी ऐसा करना है, सो वो हम यहाँ पे टैब्लू के डैशबोर्ड पे कर सकते हैं। सो इन दैट केस हमें लाइव डेटा करना पड़ेगा या एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा व्हेन वी आर मेकिंग changes in our some of like we are modifying like name or anything which is required. तो आप जब चेंज कर रहे हो, Database व्हेन वेयर temporary. यू आर चेंजिंग, आर यू चेंजिंग इन एक्सेल फाइल और आर यू गोइंग टू चेंज इन टैबलू? No, I am going to change on this dashboard only. Okay, that's fine. If you are changing some headings and all the things, so your original data is going to remain same, Okay. right? So So whenever whether it will be in extract or whether it will be live, if I'll be making change over here, it will not reflect on my parent data. okay, I'll tell you one thing. When you are connecting to a Excel file, so Excel file is a static file, okay? It won't be updated automatically, right? You need some manual intervention. You will type, then only data will be updated, correct? तो मीन्स लाइक आपके पास 1000 रो है, ठीक है, तो सोच लो आपको और 5 रो ऐड करना है, राइट? तो और 5 रो कैसे ऐड होगा, कोई जाएगा टाइप करेगा तब जाके वो एक्सेल फाइल अपडेट होगा, Yes. राइट? तो उसमें क्या होगा, तो मतलब आप तो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करो, कभी टाइम आएगा कभी आप चेंज करोगे, राइट? तो उसके टाइम पे आप एक्सट्रैक्ट पे रखो, लाइव कनेक्शन रखने का जरूरत नहीं है। लाइव कनेक्शन
when your data is getting frequently changed, frequently very fast. Okay, in case of sales, stock market, that kind of thing. Understood? Okay, fine. But in any case, like live or extract, I can change on my dashboard the number or like the value or anything I can change over here. I can Yes, modify. yes, yes, yes. Whenever if you are keeping it a live connection or extra connection, that doesn't matter. But you can change your name. You can change your name. You can change your data type. Okay. Okay. लाइव कनेक्शन हम लोग इसीलिए रखते हैं कि डेटा हमको अपडेटेड मिल जाएगा. अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सितंबर अक्टूबर का चीज है, तो सितंबर अक्टूबर इसमें 30 दिन पड़ा हुआ है, मैं लाइव में क्यों रखूं? ठीक है, क्योंकि वो दिखा दूंगा थोड़ा देर के बाद, मैं आपको बता दूंगा कि एक्सट्रैक्ट में और लाइव में प्रॉब्लम क्या होगा. ठीक है. और एक चीज है, हाँ, और एक चीज है कि वेन एवर यू आर डेवलपिंग, ओके, जब आप लोग डेवलप कर रहे हो टैबलू डेस्कटॉप में, तो दिस इज माई डेस्कटॉप, राइट. डेस्कटॉप के बाद एक सिर्फ चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो अभी. तो अगर यहाँ पे जाओ सर्वर पे, तो यहाँ पे मैं एक साइन इन करके ना पब्लिश करता हूँ. ठीक है, ये जो चीज जहाँ पे मैं एक विजुअलाइजेशन कुछ भी बनाऊंगा, तो ये साइन इन करने के बाद वो सर्वर में पब्लिश हो जाएगा. ठीक है. तो सर्वर में पब्लिश होने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज टेक्नोलॉजी रहे, राइट. तो यहाँ पे 3 वैल्यू है. सपोज मेरे को सिर्फ फर्नीचर का दिखना है, तो मैं फर्नीचर पे फिल्टर मारूंगा. तो लाइव कनेक्शन में क्या होगा, वो थोड़ा स्लो होता है. ठीक है. एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में वो थोड़ा फास्ट होता है. और जब आप डेवलप करते हो तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा. ठीक है. एक टैबलू डैशबोर्ड डेवलप करने में 15 से 30 दिन का वक्त लगता है. ठीक है. तो 15-20 दिन में क्या आपको जरूरत आएगा कि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन फील्ड लिखना पड़ेगा, किसी का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे क्या होगा ना, अगर आप लाइव कनेक्शन में रख के ये सब काम करोगे, तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा और बहुत स्लो भी होगा. ठीक है. तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट के टाइम पे हम लोग हमेशा एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में पहले स्विच कर देते हैं. ओके. तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट में स्विच करते हैं, हमारा पूरा डेवलपमेंट करते हैं, डेमो वेमो दिखाते हैं, क्लाइंट को सब कुछ दिखा देते हैं. वंस इट इज ओके एंड रेडी टू पब्लिश, देन we'll change back to live and publish. Understood? Got it, sir. Okay. Next thing. So अभी मेरा एक्सट्रैक्ट कनेक्शन हुआ है, राइट. तो मैंने अभी ये फाइल अभी तक सेव नहीं किया हुआ है. ठीक है. अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, सेव एज. तो यहाँ पे मेरे को दिखो कि यहाँ पे TWB दिखता है और TWBX दिखता है. तो हम लोग जब भी एक टैबलू फाइल, इसको कहते हैं टैबलू फाइल, तो टैबलू फाइल को हम सेव करना चाहते हैं, तो हमको 2 तरह का ऑप्शन दिखता है. एक TWB होता है, एक TWBX होता है. तो TWB में क्या होता है, टैबलू वर्कबुक, और TWBX में क्या होता है, टैबलू पैकेज वर्कबुक. रिमेंबर दिस वर्ड, पैकेज. ओके. तो टैबलू पैकेज वर्कबुक में क्या होता है, हम लोग डैशबोर्ड आप लोग कभी देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारा इमेज यूज होता है, इमेज होता है वगैरह, वो सब यूज होता है. ठीक है. तो टैबलू पैकेज वर्कबुक में ना वो सब इमेज भी आपके फाइल में सेव होके रहता है. ठीक है. आई जस्ट शो यू 2 एग्जांपल. तो अभी मैं बुक 1 TWB में सेव कर रहा हूँ. ठीक है. .TWB मैं अभी सेव किया यहाँ पे. तो एक चीज आया, क्रिएट एक्सट्रैक्ट. ठीक है. अगर आप लाइव कनेक्शन में रहोगे ना, ये ऑप्शन नहीं आएगा. अगर एक्सट्रैक्ट में आओगे तो ही ये ऑप्शन आएगा. तो ये एक्सट्रैक्ट क्या करता है, जैसे आपको मैंने बोला कि ये एक्सट्रैक्ट कनेक्शन जब रहता है, टैबलू एक स्नैपशॉट लेता है आपके डेटा का, करेक्ट. तो ये जो क्रिएट एक्सट्रैक्ट में अभी करूंगा, वो एक एक्सट्रैक्ट क्रिएट करता है. ठीक है. जो एक्सट्रैक्ट क्रिएट करता है ना डेटा का, और उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये डॉट हाइपर. ठीक है. यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेव होता है. ठीक है. यहाँ पे ये डेटा सोर्स के अंदर में कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो. इट्स नॉट अ मैंडेटरी फील्ड दैट यू विल सेव इन डेटा सोर्स इनसाइड माय रिपोजिटरी. ओके. कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो. यहाँ पे मैंने सेव कर दिया. ठीक है. तो मेरा फाइल सेव हुआ, बुक 1 .TWB फॉर्मेट. अभी मेरा डेटा कहाँ पे सेव हुआ, .TD, मतलब यहाँ पे एक सेव हुआ, ये वाला, ये क्या दिखा रहा है, उसका टाइप दिखा रहा है टैबलू एक्सट्रैक्ट, राइट.
तो टैब्लू एक्सट्रैक्ट मतलब जो टैब्लू का जो हम लोग डेटा कनेक्ट किए थे ना, उसका एक स्नैपशॉट इसने क्रिएट किया हुआ है, इसको बोलते हैं टैब्लू एक्सट्रैक्ट। और ये कब क्रिएट होगा? जब आपका डैशबोर्ड एक्सट्रैक्ट में कनेक्ट होगा। डैशबोर्ड जब आपका लाइव में कनेक्ट होगा, ये एक्सट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। इज इट क्लियर? Is it clear, guys? This is a very important concept actually. Yes, yes, sir. Yes, clear. Okay, fine. Then ये सेम फाइल, ठीक है, टीडी। अच्छा एक चीज, ये जो है ये इसको हाइपर फाइल कहते हैं। इसका अगर टाइप देखोगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये टैब्लू एक्सट्रैक्ट का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट हाइपर, ठीक है। दिस इज द एक्सटेंशन। ओके, जब आप कोई भी वीडियो या mp3 कोई सॉन्ग आप सेव करते हो, उसका क्या होता है? डॉट mp3 होता है, mp4 होता है, क्या mkb कुछ भी होता है। तो सिमिलरली द डेटा एक्सट्रैक्टेड बाय टैब्लू इज सेव्ड इन डॉट हाइपर फाइल। ओके, तो आपको कोई पूछेगा कि जब टैब्लू डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, व्हाट विल द फाइल टाइप? दैट इज डॉट हाइपर। ओके, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट थिंग, मैंने अभी इसको सेव कर दिया था डॉट TWB फाइल में, राइट। तो अभी मैं अगर जाऊंगा, ये सेव हुआ है यहाँ पे बुक 1, ठीक है। दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम फाइल को ना मैं अभी सेव कर रहा हूँ डॉट TWBX में, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, मैं अपना जो टाइप है ना वो चेंज कर दिया, तो इसका नाम मैं कुछ दूसरा दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा पे। तो बुक 2 मैंने दे दिया, तो डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ डॉट TWBX, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप में, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? मैंने पहला वाला बुक 1 जो है ना वो TWB में चेंज मतलब सेव किया था, और दूसरा फाइल मैंने TWBX में चेंज किया था। कुछ डिफरेंस है इसमें? अपीयरेंस में changes है सर। सर वो पैकेज है, मतलब उस पे एक लाइन आ रही है और उसकी फाइल के नेम में पैकेज राइट राइट, जो आप बोल रहे थे ना, मैं पैक, हाँ हाँ, मैं जो आपको बोल रहा था पैकेज चीज दूसरा है, मतलब टैब्लू वर्कबुक और टैब्लू पैकेज वर्कबुक में। तो आप पहली दफा कभी भी देख लोगे आइकॉन ना, तो आपको सडनली पता भी चल जाएगी कौन सा टाइप का फाइल है, ठीक है। ये TWB फाइल है, ये TWBX फाइल है। और एक चीज आप देख लो, इसका साइज कितना है? 131 KB। और इसका साइज कितना है? 2 पॉइंट समथिंग MB, right? 2.54 MB. Okay, so the difference is it is not saving the data. The TWB file, it is not saving the data. It is just saving when you do some visualization. और एक चीज आप याद कर लो कि ये जितना सब टैब्लो आप देख रहे हो ना, बैकएंड पे XML में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं XML कोड होता है जो आपने पता होगा आपको शायद, तो XML कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी TWB फॉर्मेट में सेव करते हो, जो कि ये है, ये मेरा बुक 1 जो TWB फॉर्मेट में है, वो XML में जो भी है ना, जो भी किया हुआ है वो XML फाइल जैसा एक सेव करता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एक चीज मैं करता हूँ, राइट क्लिक, अनपैकेज, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ डॉट TWBX के ऊपर। ये थोड़ा टाइम लेगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखा दे रहा है कुछ मतलब दो चीज क्रिएट हुआ अनपैकेज करने के बाद, राइट। सो इसमें से क्या चीज है? एक बुक 2 जो सिमिलरली TWB जैसा दिख रहा है, और एक फोल्डर क्रिएट हुआ। इसको ओपन करूंगा तो इसमें क्या हुआ, और एक फोल्डर क्रिएट हुआ जहां पे डेटा सेट रखा हुआ है, राइट। तो डेटा सेट के अंदर क्या है मेरा? ये जो फाइल मैंने कनेक्ट किया था, एक टेक्स्ट कनेक्ट किया था, एक CSV कनेक्ट किया हुआ था, राइट। और एक ऑर्डर जो मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ था वो भी है, राइट। सो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्यों उसका साइज बड़ा हुआ था, राइट। in one hand it was like 131 KB only, the other one another was 2.54 MB, because it is saving this data as well, right.
This is saving this data as well. Are you guys clear? क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ये TWV और TWBX में फर्क क्या होता है? तो TW, हाँ ओके, तो TW में क्या होता है, ये एक सिर्फ उसका बैकएंड का XML में सेव करता रहता है, इसीलिए उसका फाइल का साइज कम होता है। लेकिन आप जब TWS में किसी को सेव करते हो ना, उसमें क्या होता है, ये क्या करता है, डेटा सेव करता है प्लस TWB। तो आप ये चीज एक कर सकते हो कि, हाँ बोलो। हेलो, हाँ जो सर ये फाइल का जो बुक वन को आपने सेव किया, फाइल साइज कम हुआ सर, तो सर ये जो फाइल है, ये फाइल में क्या क्या कंटेंट रहता है और क्या सेव करता है? ना नहीं, ये ऐसे कुछ ये नहीं है इसमें डेटा नहीं रहता है। अगर मैं ऐसा? ये, हाँ ये फाइल अगर मैं आपको भेज दूंगा ना, आपको लैपटॉप में दिखाई देगा कि ये मतलब वो जो मैं एक्सेल कनेक्ट किया था आपके पास नहीं होगा, तो वो दिखाई दे नहीं देगा, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि TWBX फाइल इक्वल्स टू TWB फाइल प्लस द डेटा फाइल, करेक्ट? Because it is the combination of TWB plus all the data. Now we are using only the data files. That's why if you are using any company logo or anything, that also will be saved here. Clear hai? TWB, TWBX. Clear. Okay, fine. Okay, so I have saved it already. Now the second thing is, you can see here 3 icon. ये प्लस आइकॉन यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहला चीज क्या है, न्यू वर्कशीट, न्यू डैशबोर्ड, न्यू स्टोरी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं शीट पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये पहला वाला प्लस आइकॉन में क्रिएट करता हूँ, ये क्या क्रिएट होता है, एक शीट क्रिएट होता है। ओके, एक शीट क्रिएट होता है। दूसरा वाला में क्या होता है, एक डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है, जो कि दूसरे से पूरा डिफरेंट है, राइट? तो इसमें क्या करता हूँ, मैंने शीट 1 रख दिया। जस्ट फॉर नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू, विल डिस्कस एवरीथिंग। ये सब कैसे रखना है, क्या करना है, वो मैं दिखा दूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डैशबोर्ड में बहुत सारा सीट रख सकता हूँ, राइट? तो डैशबोर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी शीट्स, रिमेंबर दिस। डैशबोर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सीट और अ सिंगल सीट। मतलब सिंगल सीट मतलब क्या हुआ, मेरे डैशबोर्ड में से एक ही सीट बचा हुआ है, करेक्ट? तो शीट always dashboard is a combination of sheet, many sheet और a single sheet. But sheet is something, sheet में क्या होता है, हम लोग विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं और उसको डैशबोर्ड में खींच के डालते हैं। ओके, तो आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे पास टैबलू पब्लिक का बहुत सारा डैशबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है? तो ये टैबलू पब्लिक जो है फ्री वेबसाइट है। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो एक ईमेल आईडी देके और अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? तो एग्जाम्पल है जो मैं आपको बोल रहा था कि टैबलू डैशबोर्ड कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन शीट। ओके, तो वन शीट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर, ओके, यहाँ पे जैसा है ना, ये ऐसा एक चार्ट आपको दिखा रहा है, जैसे एक विजुअलाइजेशन दिखा रहा है, एक सिंगल शीट रखा हुआ है, ठीक है? तो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल शीट, ठीक है? अगर मैं नीचे कहीं पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमको दो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला कंट्री चेंज और कोट एवरेज, राइट? तो यहाँ पे है ना, हम लोग ने मल्टीपल चीजें रखा हुआ है, ठीक है? तो डैशबोर्ड में हम लोग एक चीज भी रख सकते हैं या दो शीट भी रख सकते हैं। क्लियर? थर्ड थिंग, शीट में क्या, स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में हम लोग डैशबोर्ड भी डाल सकते हैं या तो शीट भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो स्टोरी में क्या होता है, आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, तो स्टोरी बना लो, ठीक है? स्टोरी में क्या होता है, जैसे आपको दिखाई दिया कि एक मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है? एक प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है? 10 प्रोडक्ट है, मेरे को दिखाई दिया, मैंने विजुअलाइजेशन बनाया और उसके सेल में मेरे को दिखाई दिया कि प्रोडक्ट 2 हैज लेस सेल। तो हम लोग उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट 2 में क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है? तो ऐसा एक जब स्टोरी बनेगा, प्रोडक्ट 2 का कुछ मतलब हुआ होगा कि इस जगह
ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जैसे फीडबैक के हिसाब से, तो वहां पे जैसे ऐसा एक स्टोरी बनेगा, तो और प्रेजेंटेशन दिखाना है तो स्टोरी बना लेना, ठीक है। इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन शीट, डैशबोर्ड एंड स्टोरी? Once In we'll that, be doing it, then it will be more clear. Right now, it's like theoretically, it's clear. okay, fine. Like, yeah, just I want to understand like the concept is clear not because we are going to do all this sheet, dashboard, and story, so it Yes, will sir. be very helpful. Hmm. Right now we are just absorbing the terms. Yeah, yeah, that is also a thing. Like we should know how to call all the things also, Yes, sir. right? Yeah. We can't say that go left, go right like that, right? If I just ask you to create a sheet, you should go and create a sheet, right? So that is also an important thing. You should rename. Sorry, remember the name also. And the next thing here, you can see those data source which I connected are available here. Okay, the first one is the text file, the second one is the extract file, the Excel file, sample superstore, third one is the PDF file, fourth one is the CSV. Can you see a difference in this icon? Right, there is a difference in the icon, right? So there is a cylindrical icon here for the text, for the CSV and PDF also is a cylindrical icon, right? But if you see for the sample superstore, there are two cylindrical icon with a arrow mark. Okay, so what this symbol says, so single cylinder without having any arrow mark says that this data source in live connection. Okay, when you have such kind of symbol with two cylinder and with an arrow mark, so this denotes like your data set is on a extra connection. Got it? एंड हियर यहाँ पे ना आपको दिखाई देगा कि कितना सारा आपका डेटा कनेक्ट हुआ है, ठीक है। आप मैं एक एक करके 3 या 4 एग्जांपल आपको दिखाया था, तो यहाँ पे वो सब दिखाई दे रहा है कि कौन सा डेटा सेट कहाँ पे कनेक्ट हुआ है और कौन सा कनेक्शन में, लाइव में है या एक्सट्रैक्ट में। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, और एक चीज है कि आप जो भी डेटा सेट में क्लिक करोगे ना, उसमें जो फील्ड होगा यहाँ पे दिखाएगा। जैसे टेक्स्ट में, टेक्स्ट जो फाइल था मैंने मतलब क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ग्रे आउट थोड़ा हो जाता है, ये थोड़ा हाईलाइट जैसा रहता है, तो यहाँ पे जो भी कॉलम दिखा रहा है वो उसी टेक्स्ट फाइल का ही दिखा रहा है। द मोमेंट चेंज आई चेंज टू अ डिफरेंट डेटा सोर्स, राइट, जब मैं आप चेंज करता हूँ डेटा सोर्स को, आप देखो कि उसका फील्ड का चेंज हो गया, फील्ड नेम भी डिफरेंट आ रहा है, करेक्ट, फील्ड नेम भी डिफरेंट आ रहा है। तो आपको जहां मतलब जब भी जो भी डेटा सोर्स से यूज करके विजुअलाइजेशन बनाना है, आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको वो रिलेटेड दैट कॉलम्स यू विल बी एबल टू सी और यू कैन यूटिलाइज दैट वन। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, सो इन ऑर्डर एंड पीपल बी कनेक्टेड, फाइन, वी कनेक्टेड ऑर्डर एंड पीपल टेबल बैकएंड, राइट। तो अभी आपको दिखाई दे रहा हो कि डायमेंशन एक क्रिएट हो गया है और यहाँ पे एक हल्का सा लाइन है और दूसरे उसके बाद यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है। तो कल जैसे हम लोगों ने बात किया था कि डायमेंशन क्या होता है, मेजर क्या होता है। डायमेंशन इज डिस्क्रिप्टिव फील्ड एंड मेजर इज अ क्वांटिटेटिव फील्ड which on which we can add some aggregation like some minimum max and all the things, right? तो टैब्लू डिटेक्ट कर लेता है कौन सा डायमेंशन है कौन सा मेजर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जैसा एक कैलेंडर जैसा आइकॉन आता है, इसको टेबल बोलते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर टेबल क्रिएट किया था, सॉरी ज्वाइन किया था, एंड उसके साथ पीपल भी ज्वाइन किया था। तो ये एक जैसा होता है एरो मार्क ना, इसको क्लिक करने से वो एक्सपैंड कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा देखना नहीं है तो मैं ऐसा उसको स्क्वीज कर सकता हूँ और जो भी कॉलम चाहिए मैं जो भी कॉलम देखना है, जो भी टेबल्स है, मैं यहाँ पे एक्सपैंड कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो ये डिवाइड हो गया डायमेंशन और मेजर पे, राइट। और यहाँ पे आपको सेम जो डेटा टाइप वहां पे था आपको दिखाई देगा, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि Tableau will detect most of the time all the data types and it will decide also whether it's a dimension and measure, but sometimes क्या होता है कि
कुछ डायमेंशन फिर जो मेजर में आ जाता है, क्योंकि जैसे नंबर है रो आईडी, तो उसको थोड़ा कभी भी कंफ्यूज हो जाता है, वो मेजर पे डाल देता है। तो इन टाइम उसके टाइम पे ये क्या कर सकते हो, आपको ये ड्रैग कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिस्काउंट इज अ मेजर वी नो, बट इन केस वी वांट टू कन्वर्ट इट टू डायमेंशन। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, एक तो राइट क्लिक कर सकते हो, कन्वर्ट टू डायमेंशन, तो यहाँ से हटके वो यहाँ आ जाएगा, मेजर्स के हटके डायमेंशन को आ गया। ठीक है, एंड जस्ट गोइंग कंट्रोल बैक, नेक्स्ट थिंग, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ड्रैग इट लाइक दिस। ओके, तो आपको कभी भी कोई भी डायमेंशन को मेजर करना है या मेजर को डायमेंशन करना है, यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस, you can do that, convert to measure, convert to dimension. Clear? ठीक है, तो next thing is some of the symbols available here, so this is called view data. So once I click on this, अभी आपको दिखा रहा है पूरा डेटा कितना है, 9994। अभी बैकएंड में जो डेटा दिखाई दे रहा था वो पहले तो सैंपल आपको 1000 रोज दिखाया, उसके बाद मैंने 2000 चेंज किया तो 2000 हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे ना पूरा डेटा देखने को मिलता है कि आपका टोटल डेटा कितना है, तो दैट इज योर 9994। ठीक है, तो और एक यहाँ पे 10,000 के ऊपर दिखाएगा शायद, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो कि कुछ डेटा कॉपी करना है और एक्सेल में डालना है, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप क्लिक करते हो एक्सपोर्ट ऑल पे, तो क्या करते हैं, ये जो डेटा है ना, आप जो भी कनेक्ट किए होगे, एक्सेल हो या टेक्स्ट हो कुछ भी, तो ये CSV उसका एक्सपोर्ट बनाता है, तो आप उसको से भी कर सकते हो। क्लियर? तो कॉपी करके, जैसे यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C भी कर सकते हो, कॉपी भी यहाँ पे कर सकते हो। नोटपैड पे ही जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेल का वैल्यू है वो कॉपी हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, अगर कोई भी कनेक्शन के ऊपर आप राइट क्लिक करते हो, बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शन आता है और क्या चीज़ है सब। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया तो एडिट डेटा सोर्स होता है। ठीक है, तो एडिट सोर्स डेटा सोर्स करने में क्या आता है, यहाँ पे वो डेटा पेन में फिर से आ जाता है। जैसे मुझे अभी याद आया कि मेरे को रिटर्न भी यूज करना था, सॉरी मैंने यूनियन कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कभी कभी होता है कि मुझे बाद में रिक्वायरमेंट आया कि मेरे को रिक्वायरमेंट टेबल भी चाहिए था, जो मैं भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप फिर से चेंज कर सकते हो। यू वांट टू गो बैक, यू कैन क्लिक हियर। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज रिफ्रेश। ओके, तो अभी आपने जैसे कोई पूछ रहे थे कि अगर मैं एक्सेल से कनेक्ट किया हुआ हूँ, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास 1000 रोज है और आप जाके 5 या 10 रो कुछ भी ऐड कर दिया एक्सेल में, ठीक है, लेकिन आपको देखना है डेटा, कैसे देखोगे, क्योंकि वो तो एक्सेल फाइल है, एक्सेल तो एक स्टैटिक चीज है, वो तो रिफ्रेश नहीं होता है। तो इन केस यू वांट टू सी दैट, यू कैन डू रिफ्रेश। ठीक है, तो आप अगर एक्सेल जो स्टैटिक फाइल है, स्टैटिक फाइल मतलब एक्सेल हो गया, CSV हो गया, जो कि आपके लोकल में सेव है, तो इन दैट केस जस्ट गो एंड रिफ्रेश। ठीक है, और व्यू डेटा इट इज सिमिलर, व्यू डेटा इट इज सिमिलर। ओके, नेक्स्ट थिंग, यू कैन रीनेम दिस डेटा सोर्स एज वेल। ठीक है, डुप्लीकेट, तो इन केस यू डोंट वांट टू you want to do a duplicate of this data source, click on this। so ये क्या करता है, आपको डुप्लीकेट बना के देता है और वो कनेक्शन भी मेंटेन करता है। ये ऐसा नहीं कि एक्सट्रैक्ट में था, डुप्लीकेट कर दिया तो लाइव हो गया। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट है तो एक्सट्रैक्ट ही रहेगा, और उसका डुप्लीकेट करता है, जो भी यहाँ पे बना होगा, जो भी डेटा यहाँ पे है, वो सेम टू सेम उसको डुप्लीकेट कर देता है। गॉट इट? क्लोज मीन्स इफ यू डोंट वांट दिस, यू कैन क्लोज इट।
ओके मैं अभी मेरे को ये डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये दिस विल बी कनेक्शन विल बी क्लोज। नेक्स्ट थिंग, एक्सट्रैक्ट डेटा ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा पे मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट के बदले वो एक्सट्रैक्ट तो है पहले से, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट करने से फिर से एक्सट्रैक्ट हो जाता है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। ये सिंगल टेबल मल्टीपल ये सब ठीक है, आज ही हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले ये पूरा खत्म करता हूँ और एक्सट्रैक्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ये टिक मार्क लगा हुआ है यूज एक्सट्रैक्ट के ऊपर, दैट मीन्स इट इज अ एक्सट्रैक्ट कनेक्शन। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस अगेन, so that means it is going back to the live connection. Okay, just vice versa, when it is you are clicking, it is not marked, then you will just click on this and it will be a extract connection. If you do the same thing again, it will be a live connection. then अभी यहाँ पे extract connection रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन रखा हुआ है कि आप रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, डेटा फ्रॉम फाइल, अपेंड डेटा। सो अपेंड डेटा का मतलब क्या होता है, अपेंड मतलब एडिशन, ठीक है। अपेंड डेटा का मतलब होता है एडिशन, ठीक, मतलब जैसे आपके पास जनवरी का डेटा है, ठीक है, मतलब आपका जो डेटा है ना, मतलब मंथली डेटा आता है, जनवरी फरवरी और ऑल दिस थिंग, तो एवरी मंथ इट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल फाइल, ओके। जनवरी को जो डेटा होगा वो एक जनवरी का फाइल में सेव हुआ होगा, फरवरी का अलग से फाइल से सेव किया होगा। तो हम लोग को जब डेटा देखना होता है कि पूरा हर महीने का फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, जैसे सितंबर तक हो तो सितंबर का डेटा आपके पास है, अक्टूबर का फाइल अलग से आया, तो अक्टूबर का आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसे अपेंड कर सकते हो। कंप्यूट कैलकुलेशन नाउ, ये क्या होता है, अभी नाउ मतलब अभी का जो टाइम है, अभी का टाइम के हिसाब से वो डेटा कैलकुलेट करता है, ठीक है। मतलब जो रिफ्रेश डेटा है उसके ऊपर ही वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है। रिमूव मतलब सेम थिंग, आई कैन रिमूव द एक्सट्रैक्ट, ओके, इट विल कम टू द लाइव कनेक्शन, ठीक है। अगर क्लिक कर रहा हूँ हिस्ट्री के ऊपर, तो हिस्ट्री पे अभी कितना हुआ था, 1:49, ठीक है। अभी आप मैंने 2 मिनट पहले रिफ्रेश किया था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा कि इतने टाइम पे आपका फुल रिफ्रेश हुआ, ठीक है, और इतना रोज, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज दिखता है कि आपका जो हाइपर फाइल है ना, कहाँ पे सेव हुआ है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टाइप हाइपर फाइल है, ये जहाँ पे भी सेव किया होगा रिलेटेड टू दैट ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल हियर। एनी डाउट्स ऊपर? okay, data source filter, we can edit the data source filter, okay। so data source filter क्या होता है, थोड़ा बैक जाता हूँ जहाँ पे मेरा डेटा सोर्स कनेक्शन हुआ था, यहाँ पे एक कनेक्शन हुआ था फिल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ कि कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी में वैल्यू क्या है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज, टेक्नोलॉजी, राइट। तो मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे टेक्नोलॉजी दिखना नहीं चाहिए, मैं जब यहाँ पे कैटेगरी ट्रैक करूँ ना, मुझे फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज दिखना चाहिए। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डेटा पेन। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड, देन क्लिक ऑन ऐड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या ऑप्शन आ रहा है, फर्नीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी, ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, फर्नीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑफिस सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या, मुझे फर्नीचर दिखेगा और ऑफिस सप्लाईज दिखेगा। द मोमेंट आई क्लिक ऑन द filters, right, you can see one has been added, means here only one filter is there. Example, I will just add customer ID or country, on country, okay, it is only one. I'll go for other one where some more value will be there. Customer name, it will be having lot of values, but example I just take, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 3 या 4 वैल्यू ले रहा हूँ, ओके।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो कैटेगरी पे ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है, एक कस्टमर नेम के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, ये दो हो जाएगा। तो दिस नंबर डिनोट्स हाउ मेनी डेटा सोर्स फिल्टर यू हैव, ओके, एंड दिस फिल्टर इज कॉल्ड डेटा सोर्स फिल्टर, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज इट इज इन द डेटा पेन। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर नेम हटा रहा हूँ, अभी सिर्फ कैटेगरी दिखा रहा हूँ, ओके। नाउ आई विल गो टू द शीट 1, सेम थिंग, आई विल जस्ट ड्रैग द कैटेगरी टू द रोज। अभी मेरे को क्या दिखाया जा रहा है, सिर्फ फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि मैंने जो बैकएंड में डेटा लोड हुआ था मैंने से वहां से टेक्नोलॉजी हटा ही दिया, तो अभी मुझे यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखेगा। इज दैट क्लियर? एनी केस, ओके। और बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि जब आपके पास एक नल वैल्यू होता है, यहाँ पे नल था, तो आपको क्या होता है, नल वैल्यू दिखाना नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ वही वैल्यू दिखाना है जिसपे वैल्यू हो, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप नल को एक्सक्लूड कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा वैल्यू है, दूसरा एक शीट में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे कॉलम का नाम हो गया मैरिड और, ठीक है, तो मैं शीट में जाता हूँ, सॉरी नॉट हियर, आई विल जस्ट गो टू द डेटा सोर्स फिल्टर, ओके, आई विल ऐड द कॉलम, जैसे नंबर है, तो यहाँ से मैं नल हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल पर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा टाइम क्यों लिया कि इसमें ये लाइव कनेक्शन पे ऐड, देखो यहाँ पे बहुत सारा नंबर्स भी है और उसके साइड नल भी है, राइट। तो नल क्या होता है कि कभी कभी यूजर को समझ में नहीं आता कि नल क्या होता है, आप उसको कभी कभी समझ में समझा भी नहीं सकते हो कि व्हाट इज अ ब्लैंक वैल्यू, ठीक है। तो अगर बाद में हम देखेंगे कि नल को कैसे जीरो से रिप्लेस करेंगे, फॉर नाउ जस्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मेरे को नल नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ नल को ही निकाल दे रहा हूँ। अभी आपका डेटा रिफ्रेश हो गया कि जहाँ पे अगर मैरिड और इन यूनियन में जो भी है, जो कॉलम नेम उसमें अगर नल है वो हटा दो, मुझे नहीं चाहिए, राइट। दिस इज काइंड ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। So we are working with the data and we are clearing the data and filtering also. Is it clear? So data source filter आपको कहाँ पे काम आएगा? So next time when you go to the sheet, you will not find the null value. Is it clear? Okay. So अभी मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को वो भी दिखाना है, टेक्नोलॉजी भी दिखाना है। तो यहाँ पे जाके आप रिमूव कर सकते हो, इन केस इफ यू वांट टू एडिट यू कैन एडिट एज वेल। Clear guys? Yeah, sir. Okay. Clear. Okay. We'll go to the next options available here. So the next option is edit data source. Okay, edit data source filter. Okay, so whatever the data source filter we applied in the data pane, that we can edit from here. We don't need to go there back again. Okay, जैसे मैं अभी यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डेटा पेन पे ले आता है, ठीक है। इन केस मुझे यहाँ पे आना ही नहीं है तो मैं यहाँ से ही डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। ओके, रिप्लेस डेटा सोर्स ये मैं बताऊंगा क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डिसेबल है, ठीक है। तो हम लोग इसमें काम करेंगे इसके ऊपर। This is a different concept. It will like in a separate class we'll discuss. Date properties, ठीक है। तो यहाँ पे डेट प्रॉपर्टीज में क्या है ना, ये कैलेंडर सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो ये ISO 8601, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीक स्टार्ट होता है मंडे से, राइट। तो ये आप सिलेक्ट आप गूगल पे भी सर्च करोगे ISO 8601, so this is the standard maintained, okay, ISO standard. Okay, in case I am going to the standard
Georgian. So what we can do is we can select our week start Sunday, Monday या Tuesday, कभी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आपको मतलब डेट के साथ खेलने का मौका मिलता है, ठीक है। और डेट फॉर्मेट, ठीक है। डेट फॉर्मेट आप देख सकते हो, आपको जो डेट है ना वो कैसे दिखाई देता है, नहीं दिखना चाहिए आपको भी, मतलब जैसे मार्च 14 2001 और उसके साथ डेट मतलब वीक डे भी दिखना चाहिए, वेदर इज अ वेडनेसडे और थर्सडे और एनीथिंग, और ये स्लैश से सेपरेट होगा कि नहीं। तो ये बाकी सब चीज आप कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। आपके पास अगर डेट के हिसाब से कुछ चेंजेस करना है तो यू कैन चेंज इट टेकिंग इनटू स्टैंडर्ड जॉर्जियन ऑप्शन, ओके। आईएसओ में वो तो फिक्स रहेगा, आप कर नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। एडिट एलियासेस एडिट एलियासेस का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगरी, ठीक है, फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये जो फर्नीचर लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे लिखना है फर्नीचर हाइफन वुड और वुड फर्नीचर, कुछ भी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ईच वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ईच वैल्यू आई कैन चेंज द नेम, ओके। इन डेटा पेन वी आर एबल टू चेंज द कॉलम नेम, हियर आल्सो वी आर एबल टू चेंज द कॉलम नेम एज वेल एज द वैल्यू नेम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एडिट एलियासेस किस पे करूंगा, अगर कैटेगरी है मेरे पास, कैटेगरी है तो दिस इज मेंबर, मेंबर मीन्स द एक्चुअल वैल्यू। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक वुड हाइफन फर्नीचर, ठीक है। और the moment I click right, you can see here the asterisk symbol, the star on, that means ये जो ओरिजिनल फील्ड था ना इसका नाम चेंज होके वुड फर्नीचर किया हुआ है, ठीक है। और बाकी दोनों का एज इट इज। अभी आप देखोगे कैटेगरी डालता हूँ तो ये वुड फर्नीचर हो गया, ठीक है। मैं दूसरा भी शीट क्रिएट करूँ, सेम नेम रहेगा, चेंज रहेगा, ठीक है। तो अगर एडिट एलियासेस आप करते हो ना, उसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द वर्कबुक, दिस इज अ वर्कबुक वेदर इट्स अ TWB और TWBX, थ्रू आउट द वर्कबुक योर एलियासेस द रीनेम्ड वैल्यू नेम विल बी शोन। गॉट इट? सर एक डाउट है सर। बोलो। सर शीट में आप किसी भी इसको अगर मॉडिफाई करते हो, आप रीनेम करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो इसका जो ओरिजिनल डेटा है सर एक्सेल में या फिर चेंज नहीं डेटाबेस में हुआ, जहाँ भी वो है, चेंज नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है ना? वो नहीं हो रहा है। ये मेरे सिर्फ टैब्लू के शीट में मॉडिफाई हो रहा है। Exactly. Whatever you are changing, everything is changing this Tableau file. It is एग्जैक्टली। not going to change anything in your Excel input or database. Got it? सर थैंक यू। Welcome. Publish to server. This will come into your server part. Okay. Add to saved data source. Export to CSV. Okay. So export to CSV means same thing. You can the view data में जैसे हम लोग CSV convert किए थे, that one is the same. Okay. The next thing is save data source. I'll come to that. Before that, I'll just click on this property, then we'll go to the server. Add to save data source. Okay. तो फाइल नेम यहाँ पे मेरा कनेक्ट हुआ है, ठीक है। ये मेरा जो फाइल है ना, ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, जो डेटा सोर्स मेरी पोस्ट में था, टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। वर्कशीट में कौन सा टेबल यूज हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ये क्या था, माई स्टेप डेटा सोर्स, ओके। तो अभी तक मैंने आपको जो भी ये डेटा सेट कनेक्ट करके दिखाया, चेंजेस थोड़ा किया था, राइट। जैसे कस्टमर आईडी को मैंने कस्ट आईडी कर दिया, और एक तो मैंने वो कैटेगरी में एलियासिस किया हुआ है, राइट। सो एग्जाम्पल दिस वन योर प्रोजेक्ट इज फिनिश, और आपने एक डैशबोर्ड बना ही दिया है, राइट। तो चलो 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको फिर से एक रिक्वायरमेंट आया कि जो सैंपल सुपर स्टोर का डेटा था ना भैया, उसको ले लो और आप एक फिर से डैशबोर्ड बनाओ, ठीक है। और डैशबोर्ड में क्या चेंजेस रहना है कि वो सेम कैटेगरी के एलियासेस रहेगा, और ये सब जो रीनेम कॉलम किया हुआ था वो भी करना है। तो आप क्या करोगे, फिर से वो सब चेंजेस करोगे, क्योंकि डेटा सेट सेम है, ठीक है। डेटा सेट सेम है और बाकी सब चेंजेस आपको फिर से करना पड़ेगा नहीं, राइट। दैट विल बी टाइम टेकिंग, राइट।
So in that case, you can save these changes. Whatever the changes you have done, you can save the changes and you can save in a file that is called tableau saved data sources. ठीक है, तो इसके पहले और एक चीज दिखा देता हूँ. ठीक है, हम लोग यहाँ पे जैसे वो डेटा कनेक्शन किए थे, नीचे यहाँ पे देखो कि सैंपल सुपरस्टोर वर्ल्ड इंडिकेटर रखा हुआ है. ठीक है, so whenever you are installing you are getting this files names available here. ठीक है, तो हम लोग जब अभी डेटा सोर्स सेव करेंगे ना, वो तीसरा नाम यहाँ पे आ जाएगा. देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड टू सेव डेटा सोर्स. ठीक है, तो इसका नाम क्या मैं कर देता हूँ कि सुपरस्टोर 2. सुपरस्टोर 2 कर दिया और इसको मैं सेव कर दिया. सिमिलरली इट इज आस्किंग द लोकेशन एज वेल. ठीक है, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट का बनाया था. ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट का जो फाइल बनाया था उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट हाइपर. ठीक है, अभी जब अभी कोई डेटा सोर्स सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टीडीएस, टैब्लू डेटा सोर्स. ओके, सॉरी, आई जस्ट सेव्ड इट. आई विल गो बैक हियर. यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट. तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट आई एम सेविंग दिस फाइल, कंट्रोल एस. तो मैंने एक टैब्लू का नया फाइल ओपन करता हूँ. ठीक है, अच्छा सॉरी, नॉट न्यू, दिस न्यू. तो अभी मैं टैब्लू का एक नया फाइल ओपन करता हूँ जिसमें मेरा डेटा सोर्स कुछ कनेक्शन किया नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सैंपल सुपरस्टोर ही यूज करना है क्योंकि उसमें मेरा बहुत सारा चेंजेस किया हुआ था. मैं उसी फाइल को ही यूज करना चाहता हूँ. मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये मेरा सुपरस्टोर कनेक्ट किया हुआ है, सेव किया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग ने क्या चेंजेस किया था, कस्टमर आईडी वो यहाँ पे है और कैटेगरी डालूं तो वो चेंजेस भी यहाँ पे है. ठीक है, गॉट इट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैब्लू सेव्ड डेटा सोर्सेस? इज इट क्लियर? नो सर, ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया. ठीक है, तो हाँ, जैसे एग्जाम्पल है कि आपको एक डैशबोर्ड बनाना था जो कि खत्म हो गया. ठीक है, आपने एक डैशबोर्ड बना दिया, ये महीने में आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपने फिर से कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में काम किया. तो एक महीने के बाद आपके पास रिक्वायरमेंट आया कि भैया मेरे को एक डैशबोर्ड बनाना है यूजिंग द सेम सैंपल सुपरस्टोर डेटा. पहले इसको तो सर सेव कर लोगे, उसके बाद सर जो मैंने चेंजेस किया, कॉस्ट आईडी ठीक है, एंड डेस्कटॉप फर्नीचर, ठीक है, उसको कॉस्ट कैसे लेते हैं? हाँ, कॉस्ट आईडी फर्नीचर आप सेव कर लिए, राइट. मतलब आपने चेंजेस कर लिया, तो राइट क्लिक जाके यहाँ पे हमने किया ना, राइट क्लिक यहाँ पे हम लोग ने किया ना, किधर था, ऐड टू सेव डेटा सोर्सेस. तो आप जब ऐड टू डेटा सोर्सेस करते हो ना, तो आपको पूछा कि कौन सा लोकेशन में सेव करना था, राइट. ये तो ये जो है, ये चीज क्रिएट हुआ था 41 KB का टैब्लू डेटा सोर्स, करेक्ट. तो ये जो फाइल है ना सुपरस्टोर 2, यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में दिखा रहा है, यहाँ पे एक शॉर्टकट में दिखा रहा है ना आपको एक नाम. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू वांट टू ऐड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस. ठीक है, बिकॉज यू वांट टू यूज द सेम फाइल, राइट, विद ऑल द चेंजेस, you can click on this. So all the changes whatever you have done, for now I have done only 2 changes, that's why it is reflecting. Is it clear? Okay, fine. I'll just close this. So this part is clear, right? No doubt on this. So साइमल्टेनियसली आप जैसे करा रहे हो सर, साइमल्टेनियसली हम लोग भी वैसा ही नहीं कर सकते ना? नहीं, टाइम नहीं होगा. तो क्या होगा ना, मैं अपना जो एजेंडा है ना पर डे का मैं मतलब क्लियर नहीं कर पाऊंगा फिर. इतने सारे आइकन्स है तो उसके ऊपर जाकर ईच एंड एवरीथिंग सर
फिर से रिकॉल करना, तो इसीलिए सर पूछ रहा था कि हाँ, आप अगर एक काम कर सकते हो ना, मतलब साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे आप पूछ रहे हो तो एक डाउट होता तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन सोच लो कि हर कोई पूछने लगा तो फिर मुझे जी टाइम नहीं होगा कि मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा फिर, जी ठीक है। ठीक है। तो आप क्या करो, उसके बाद सेशन को जाके फिर से देखो कैसा होता है, क्या चीज हम लोग डिस्कस किया, तो उसके आप कर मतलब ट्राई करो। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात कर लेंगे। ओके ओके, फाइन। सो हम लोग ने अभी बात किया डेटा कनेक्शन के ऊपर और बाकी एक डेटा के ऊपर क्या क्या ऑप्शन होता है, ठीक है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। नेक्स्ट थिंग, So Soumya, yep. we have around 10-15 minutes, so you can wrap up accordingly. Yeah. And Sahil, we'll do the one-on-one for the installation issue after this or in the same. No. So I have another class, so we are using the same link, right? Mm-hmm. So I'll be using this Zoom link after 2:30. So you can connect with the people post 4:30, right? 4:30 today. Yeah, today 4:30 or any time this week, based upon. So you can have a session with everyone for half an hour. So you can invite everyone over there, and there you can let them know कि क्या डाउनलोड करना है और ठीक है तो एक सैंपल आप लोग आधे घंटे में डाउनलोड कर लेना ताकि सब लोग देख लें। तो आज 4:30 के बाद वो सेशन कर लो, चाहे इस वीक ठीक है। तो मैं मेक श्योर कि सबके पास टैबल्यू इंस्टॉल्ड है, सो दैट वी कैन डू हैंड्स ऑन। आप एक एक्सरसाइज दे देना इस वीक, जो भी हमने आज तक किया है, give 2-3 sample assignments so that everyone can do hands on। और आप 4:30 के बाद आधा घंटे का सेशन कभी भी कर लो, या कल परसों में जब भी आपके पास टाइम हो उस अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है। 4:30 के बाद मैं ग्रुप में पिंग कर दूंगा, किसी को ज्वाइन करना हो तो कर लेना। तो मतलब जस्ट पिंग दैट वी आर ज्वाइनिंग। हाँ, किसी को नहीं, एवरीवन हैज टू ज्वाइन, राइट? बिकॉज मैं अगर कल पूछूं कि इंस्टॉल्ड है तो नोबडी शुड से कि पाइथन अभी टैबल्यू अभी इंस्टॉल नहीं हो, राइट? इट हैज टू। ठीक है, तो हाँ ज्वाइन कर लेना, लेकिन मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, ज्वाइन कर लेना, ऐसा नहीं कि फिर आप टाइम दे देना इनको। तो Tableau we already installed now. Is there anything else we need to install, or like only Tableau 10.25 or something like any that? version, Only that's not version doesn't matter, just install Tableau, nothing else. जिनके इंस्टॉल्ड Okay, so मैं actually जिनके नहीं इंस्टॉल्ड, come in that session. So I just want to install student version because I'm having student ID. So I'm just looking for that one. I don't want that 14 days. Yes, for that option is there. So what you have to do, you have to upload your ID card, the student ID. Okay, once you upload that and you give a valid email ID, so what they will, I'm having it. Yeah, they will just validate and they will send a key to your mail ID, and that you can activate. Okay, so I just want you guys not to do at a time everyone, because they might think like everyone is using for a training session. Okay, so that can be done. A few people can arrange the student ID, and mostly the same student ID works for 2 to 3. So mostly it will work for 2 at least also. Okay, so you can share that key as well if you want to share with your friend as well, or in this group if you want someone. Okay, so okay, thank you. Yeah, so the next thing is like we are going to check this is file option. So there is like if you see the same option, it is like you are going for a Word or Excel, but one or two option is there that I just want to discuss with you guys. So file, new, open, close, this is nothing difference between Microsoft Excel and all, save as and all. So export as version, okay, this is something new. Okay, so export as version, your name click. तो ये क्या कर रहा है कि हमको ऑप्शन है दे रहा है कि आप वर्जन कौन सा वर्जन में सेव कर सकते हो, राइट? सो राइट नाउ आई हैव जस्ट इंस्टॉल्ड माय वर्जन, करंट वर्जन इज 2019-4. okay, 2019-4. if I want to save into any of the version, I can click and the file will be saved in that version. Okay, now you can ask like what is the utilization of downgrading the version or changing the version? Okay, so always remember
So server and desktop version should be same. Okay. Why I am saying is your server version, let's see, your server version is 2019.4, and but you wrongly installed your desktop as something 2020.2. Okay. The one issue will happen because when you are utilizing when you are installing 2020.2, obviously there will be some new features will be added to that version. उसमें कुछ new feature add हुआ होगा, तब जाके आप लोग अपडेटेड वर्जन ले रहे हो. ठीक है. तो क्या होगा, आप जब 2020.2 में डैशबोर्ड डेवलप किया होगा इन डेस्कटॉप, अब आप पब्लिश करोगे सर्वर में, जो अगर न्यू फीचर आप जो यूज किए होगे ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा. गॉट इट. तो आप मतलब अपग्रेडेड वर्जन से अगर पब्लिश करे हो, मतलब लोअर वर्जन ऑफ सर्वर, तो क्या होगा, जो आपका न्यू फीचर्स जो भी ऐड किया होगा, क्या या आपने यूटिलाइज किया होगा डेवलपमेंट में, वो आपको दिखाई नहीं देगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, whenever you are using desktop, just make sure that what is your version of the server, the download the Tableau desktop according to that. Okay, is it clear? तो पहले क्या होता था कि जैसे ये ऑप्शन नहीं था, एक्सपोर्ट एज ए वर्जन हमारे पास नहीं था, तो हम लोग जो, जैसे आपको मैंने बोला कि XML फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है, XML फाइल में लिखा हुआ है टैब्लू, तो हम लोग को XML फाइल में जाके ये वर्जन चेंज करना पड़ता है. सो टैब्लू हैज इंस्टॉल्ड दिस, गिवन दिस ऑप्शन, so that is very helpful for the guys if they are they want to export the file into a different version. Okay. Sir, I have a question. Yeah, please ask. Can we also change the version of the saved file later? Saved file later. Yes. What you can do is, like, now it is saved. This was book 2 is saved, right? My book 2 is saved already. Right. Control S करता हूँ भी सेव हो जाता है, इसको मैं क्लोज भी करता हूँ भी सेव हो जाएगा. ठीक है. तो बाद में अगर आपको सेव करना है ना, फिर से ओपन करके फिर से सेव कर दो. मतलब जहाँ पे सेव हो गया ओपन करो, फिर फाइल में जाओ और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज वर्जन करके सेव कर दो. ठीक है. Okay. ठीक है. तो export as package workbook, this will be same, like you want to save the file in TWB or TWBX. Okay, so there is nothing much changes in this, there is no much addition into this file option, but PowerPoint, so later when we will go for some visualization na, you can export as a PowerPoint. So what it will do is, ये क्या करता है कि एक स्क्रीनशॉट लेके ऑटोमेटिकली PowerPoint में डाल देता है. ठीक है. तो आपको कभी कभी प्रेजेंटेशन कभी दिखाना होगा कि ये हम लोग का डेवलपमेंट था, ये सब डेवलप हुआ है, तो आपको वो स्निपिंग टूल यूज करके ये सब क्रिएट करके एक काट के डालना नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स अ पावर पॉइंट. सो स्टार्ट पेज सेम थिंग. ठीक है. तो पेस्ट कॉपी पेस्ट जो भी है मतलब सेम है, कंट्रोल बी कंट्रोल सी. इंपोर्ट वर्कबुक, इंपोर्ट वर्कबुक मतलब जैसे बुक 1 नहीं है, अच्छा TWB, जैसे बुक 1 यहाँ पे आ गया, मैंने ओपन किया. ठीक है. तो मैंने बुक 1 ओपन किया. ठीक है. It's taking some time. Okay. The next thing is, तो इसमें क्या हुआ देखा आपने कि जैसे बुक 2 में मेरा सैंपल सुपरस्टोर था, जब मैंने इंपोर्ट किया ना, उसका जो भी डेटा था यहाँ पे आ गया. राइट. दिस क्रिएटेड एज सैंपल सुपरस्टोर 2. ठीक है. तो आपको कभी भी मतलब एक डैशबोर्ड से दूसरे डैशबोर्ड में कुछ चेंजेस करना होगा या मतलब एडिशन करना होगा ना, सेम चीज आप इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है. इंपोर्ट वर्कबुक. पेज सेटअप सेम थिंग, लाइक ये चीज टाइटल है, ये सब चेंजेस करना पड़ेगा. टाइटल मेरे को दिखाना नहीं है ये सब. ठीक है. तो ये सब जनरल थिंग है. तो आप अगर टैब्लू अगर डेस्कटॉप एक बार डाउनलोड करोगे, just work around this and see how it is changing. Okay, this is very easy, just check it. And main thing is this export as version. Okay, print to PDF you can change, and this option local, sometimes if you want to change your language you can do that here. Okay, repository location currently मैंने जैसे आपको बोला था कि डॉक्यूमेंट में जाके आपका एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाता है जहाँ पे और
these folders are automatically created, तो आपको ये default location आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है? बाकी सब ये जो है आपको recent फाइल ही दिखा रहा है, एग्जिट तो आप ये क्लोज कर सकते हो। एनी डाउट ऑन दिस गाइस? डाउट तो सर नहीं है, बट इंस्टॉलेशंस के बाद इस चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे, लाइक करेक्ट बिकॉज मैं रिपीट मोड पे देख के वीडियो। श्योर मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो आपको भी एक बार सर जब तक हैंड्स ऑन नहीं करेंगे ना सर, क्लियर नहीं हो। वो तो करेक्ट है, आप जब तक मतलब खुद से नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट? ओके देन साहिल, वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे। Yes, we can. I think good so far. Okay guys, I will just mention few of the things in the chart, like what are the things you need to do hands-on. Mostly you do all the things, I'm not asking not to do, but mostly few of the things, few of the points I'll just point out so that you don't forget to do the things. And I'll be sharing the files with you guys also, and also 4:30 we'll join for the installation part. Thank you guys, thanks for joining. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.